رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد المبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رعانی فقد رعا الحق. عزیزان محترم، آج ہماری اس مسجد میں مہمان خصوصی تو کوئی نہیں ہے، الحمدللہ سب میزبان ہی ہیں. مہمان اس کو کہتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے آئے، ایک بار آئے چلے جائے. مگر اللہ کا کرم اور فضل یہ ہے کہ ہم روزانہ یہاں پر آ رہے ہیں. نہ یہاں میں مہمان ہوں نہ آپ یہاں مہمان ہیں. میں بھی میزبان ہوں، ہمارے بھیا بھی میزبان، حافظ صاحب بھی میزبان، مولانا بھی میزبان، آپ بھی میزبان. کوئی مہمان نہیں ہے. مہمان دراصل چھٹی پر ہیں، اسی لیے آج کمیٹی والوں نے 10 منٹ بات کر دیے ہیں. صاحب 10 منٹ، حافظ صاحب 10 منٹ، ہمارے بھیا 10 منٹ، مولانا 10 منٹ، کیسا بھی کر کے 40 منٹ گزارنا ہے آپ لوگوں کو. یہی ارادہ ان لوگوں کا ہے. تو تبرکن آپ حضرات کے سامنے 10 منٹ کے لیے ہم آئے ہیں. جب آئے ہیں یہاں پر تو کچھ تیاری نہیں ہے، کیونکہ شام میں کہا گیا ہے کہ سب کو 10 منٹ بولنا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. عوام میں سے بھی کسی کو ٹھہرا کر کہا جائے کہ مصطفیٰ کی شان بتا تو وہ بھی بتانے لگے گا. یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام ربانی میں جتنی بھی آیتیں نزول ہوئی، جتنی بھی آیتیں آئی، ہر آیت نازل ہونے کے بعد، اس کا وقت آنے کے بعد اس پر پابندی کی گئی. واقعی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کو قائم کرو. عصر ہوئی تو عصر کا ٹائمنگ دیکھا جاتا ہے، عصر کی نماز عصر میں پڑھی جاتی ہے، فجر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں. یعنی کہ واقعی الصلاۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تو نماز کے اوقات کا انتظار کیا جاتا ہے نا. تو پھر کہا وآتوا الزکاۃ، زکات دو. تو زکات کب دیتے ہیں؟ جب صاحب زر ہو جائے، دولت کما لیں، مال آ جائے، یعنی کہ ہم زکات دینے کے مستحق ہو جائے، استطاعت آ جائے، ہمارے اندر طاقت آ جائے، اتنا پیسہ آ جائے، اس کے بعد ہم جو ہے زکات دیتے ہیں. ہر ارکان پوری کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آیتیں نزول کی، تمام کی تمام آیتیں پوری قرآن وقت آنے پر عمل ہوتا ہے. مگر میرے مصطفیٰ کی شان و عظمت یہ ہے، ایسی بھی ایک آیت اللہ نے کہا جیسے ہی آیت سنتے ہیں ہم اور آپ دونوں مل کر اس پر عمل کرتے ہیں. جیسے ہی آیت ہم سنتے ہیں کلام شریف کی، وہ آیت پر عمل میں نہیں، آپ لوگ بھی عمل کرتے ہیں. عمل کب کرتے ہیں؟ وقت آنے پر نہیں کرتے. وقت آنے پر اس کی پابندی نہیں کی جاتی. اگر آپ بازار میں ہو تو عمل کرتے ہیں، شہر میں ہو عمل کرتے ہیں، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شمال میں ہو، گویا کہ دنیا کے کسی بھی کام میں موجود ہو، جیسے ہی قرآن کی وہ آیت سنتے ہیں اس پر ہم اور آپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا ایک آیت رکھا ہے کہ پورے مل کر عمل کرتے ہیں. وہی آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا نبینا مولانا محمد المبارک وسلم صلوا علیہ. کیا نا ہم نے عمل؟ آپ بھی عمل کیے، میں نے بھی کیا، مولانا نے بھی، حافظ صاحب نے بھی کیا. یعنی کہ قرآن شریف کی یہ وہ آیت ہے جسے سنتے ہی عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت کو اتنی طرح سے اس طرح سے رکھا ہے اس لیے کیونکہ میں بھی عمل کرتا ہوں، تم بھی اس آیت پر عمل کرو. یہ وہ آیت ہے
میرے مصطفیٰ جان رحمت پر پوری زندگی بیٹھ کر صرف درود شریف کا ورد کرتے ہیں، تب بھی ہم احسان چکا نہیں سکتے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں، بزرگان دین کے زمانے میں جب بھی کسی چیز کی حاجت ہوتی تھی تو لوگ مصلی پر بیٹھ کر درود شریف کا ورد کرنے لگتے تھے۔ یہ اثر ہے درود شریف میں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں بتاتے ہوئے اپنی تقریر کو آگے لے چلتا ہوں۔ ابو الحسن کیسانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں ایک نوجوان تھا، جب بھی کسی چیز کی حاجت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا۔ کیسی بھی حاجت ہو، پیسے کی، مال زر کی، کوئی بھی کام کی، ہر عمل جو ہے درود شریف سے وہ شروع کرتا تھا۔ اسے ایک مرتبہ 500 دینار کی ضرورت پڑی، یعنی کہ اس کے اخراجات گھر چلانے کے لیے 500 دینار ہونا۔ عشاء کے نماز کے بعد درود شریف کا ورد کرتے ہوئے سو جاتا ہے۔ سونے کے بعد سبحان اللہ، اس کے خواب میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ خواب میں وہ نوجوان سے پوچھتے ہیں، اے نوجوان، تمہیں 500 دینار کی جو ضرورت ہے کل صبح جا کر ابو الحسن کیسانی کے پاس سے لے لو۔ نوجوان خواب میں سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ میرے خواب میں آئے اور مجھے 500 دینار کی ضرورت پڑی، اگر وہ اس کی گارنٹی پوچھے کہ سرکار تیرے خواب میں آئے، اس کی کیا گارنٹی ہے، میں کیا بتاؤں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کہو کہ رات میں ابو الحسن کیسانی جب بھی سوتے تھے، سونے سے پہلے 500 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا کرتے تھے، کل رات انہوں نے درود پڑھنا بھول گیا ہے۔ یہی اس کی دلیل ہے۔ صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد نوجوان کو یقین تھا کہ سرکار میرے خواب میں آئے ہیں، میں ابو الحسن کیسانی کے پاس جاؤں گا تو یقیناً جو ہے مجھے 500 دینار مل جائیں گے۔ وہ ابو الحسن کیسانی کے بارگاہ میں جاتا ہے، ان کے دربار میں جاتا ہے۔ جانے کے بعد آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے، اے ابو الحسن کیسانی، مجھے 500 دینار کی ضرورت پڑی ہے، آپ مجھے دے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ 500 دینار کی مجھے ضرورت ہے، حاجت ہے، اگر آپ مجھے 500 دینار دے دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ تو نوجوان کو اندر لے جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ سائل تھا، سائل سے نرمی سے پیش آنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہتے ہیں کہ میاں کیوں ضرورت پڑی، اور ضرورت پڑی اگر میں تمہیں دوں گا تو واپس کب دو گے؟ کہا کہ میں جلدی لوٹا دوں گا، آپ مجھے 500 دینار دے دو۔ کہا کہ گارنٹی کیا ہے تو لوٹائے گا؟ کہا کہ سرکار میرے خواب میں آئے تھے، سرکار نے کہا کہ جا کر ابو الحسن کیسانی کے پاس سے لے لو، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ ابو الحسن کیسانی کہتے ہیں، اے میاں، خواب میں میرے حضور تیرے آئے تھے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تیرے خواب میں میرے مصطفیٰ آئے تھے؟ نوجوان کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے کہا اگر ابو الحسن کیسانی گارنٹی پوچھے، اگر تصدیق نہ کرے تو یہ کہنا کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مجھ پر 500 مرتبہ درود شریف کا ورد کرتے تھے ابو الحسن کیسانی، کل رات میں درود شریف پڑھنا بھول گئی، اس کی گارنٹی ہے۔ ابو الحسن کیسانی پریشان ہو گئے، کہا کہ واقعی میں نے کل رات میں جو ہے درود شریف پڑھنا بھول گیا تھا۔ اندر گئے، جا کر 2000 دینار لائے، لا کر کہا کہ میاں 500 دینار تیری حاجت کے لیے، 1000 دینار میرے مصطفیٰ تیرے خواب میں آئے اس لیے، اگر تو کہہ کر بھیجتا تو میں خود چل کر آتا، تو میرے مکان تک چل کر آیا ہے، اسی لیے اس کا معاوضہ 500 دینار۔ یہ 2000 دینار تو رکھ لے۔ رکھنے کے بعد محدثین کہتے ہیں ابو الحسن کیسانی اس نوجوان کا طواف کرنے لگتے ہیں، چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ ابو الحسن کیسانی جب وہ نوجوان کا چکر کاٹ رہے تھے، نوجوان نے کہا طواف تو کعبے کا کیا جاتا ہے، آپ میرے ارد گرد کیوں گھوم رہے ہیں؟ کہا کہ میرے مصطفیٰ کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے، اسی لیے
चक्कर लगा रहा हूं। मेरे मुस्तफा ने, तेरी आंखों ने मेरे मुस्तफा का दीदार किया है, इसीलिए मैंने जो है तेरा तौबात कर रहा हूं, तेरा चक्कर लगा रहा हूं। तो अजीजा ने मोहतरम, इंसान को कैसी भी तकलीफ आए दरूद शरीफ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह जिक्र खुदाबंदी भी है। ये अल्लाह और उसके फरिश्ते मेरे मुस्तफा पर दरूद भेजते हैं। हमारे लिए भी जरूरी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ की महफिलें और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते रहना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने खुतबे के दरमियान में एक छोटी सी आयत शरीफा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जो मेरे नबी की इताअत है गोया कि वो अल्लाह की इताअत है। और मैंने एक हदीस मुबारक कही, मन रानी फक़द राल हक, सरकार का फरमान है जिसने मुझे देख लिया उसने हक को देख लिया। अब हक कौन है? वही लामकान में है, वही हक है। तो सरकार का फरमान है कि जिसने मेरा दीदार कर लिया, मुझे देख लिया, उसने हक को देख लिया। तो अजीजा ने मोहतरम, सरकार को देखने के लिए हमारी आंखों में वो तासीर भी होनी चाहिए जो हम सरकार का दीदार कर सके। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चंद सहाबा ऐसे भी थे कि आपको देखे बगैर भी आप पर इतनी मोहब्बत करते कि अपनी जानों को तक आप कुर्बान कर दिया करते थे। सरकार की इताअत, सरकार की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत है। सरकार को देखना गोया के अल्लाह को देखना। तो अजीजा ने मोहतरम, ये एक सहाबी रसूल है जिन्हें हम अवैस खरनी के नाम से जानते हैं। अवैस खरनी को तो बहुत लोग जानते हैं। बज़ाहिर में अवैस खरनी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अपनी हयात में देखा ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी वक्त चल रहा था, आप अपना जुब्बा मुबारक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देते हैं, कहते हैं कि ये ले जाकर फला मुकाम पर जो है एक शख्स है अवैस खरनी, ये जुब्बा मुबारक उनको दे देना। सरकार जब जुब्बा भेज रहे हैं तो उनकी अजमत क्या होगी, और कहते हैं सरकार जाकर कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। वो शख्स जो कभी सरकार को देखे ही नहीं, मगर सरकार अपना जुब्बा मुबारक देकर भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करना। तो बज़ाहिर ये दुनिया फानी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओझल होने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों मिलकर सरकार के फरमान के मुताबिक जाते हैं। जाने के बाद बहुत तलाशने के बाद आखिरकार अवैस खरनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिल जाते हैं। जैसे ही मिलते हैं, सलाम दुआ होने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक हज़रत अवैस खरनी को देते हैं। जैसे ही देते हैं, अवैस खरनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि अवैस खरनी को मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मुलाकात नहीं की, क्योंकि उनकी मां नाबीना थी और वो बहुत बीमार थी। आप उन्हें छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे, ऐसे आपके हालात थे। जैसे ही जुब्बा मुबारक लेते हैं, ज़ारो खतार रोने लगते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा नहीं, दुनिया से चले गए। और ऐसे ही रो रहे थे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि सरकार ने फरमाया है कि आप सरकार की उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। जैसे ही अवैस खरनी ये बात सुनी थी, सजदे में चले जाते हैं। रोते रोते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रोते रोते सजदे में चले जाते हैं। सजदे में जाने के बाद ज़ारो खतार रो रहे थे, रोने की आवाज बंद हो गई। 5 मिनट 10 मिनट
हत्ता कि 1 घंटा से जायद हो गया, आप बेदार नहीं हुए, आप सजदे में ही थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि शायद सरकार की मोहब्बत में ये भी कहीं इंतकाल करना गए हो, इसीलिए आपको जैसे ही हिलाकर बेदार किया गया आप फौरी उठ गए। जैसे ही उठे आप हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ सुर्ख और लाल होकर देखने लगे। कहा कि अली रज़ी अल्लाह तआला आप थोड़ी देर रुक जाती तो कितना अच्छा होता। सरकार की पिछली उम्मत की बख्शिश की दुआ मैंने कर दी थी, आने वाली उम्मत की दुआ करने वाला था, आपने मुझे बेदार कर दिया। सरकार के सहाबी में यह असर कि उम्मत की बख्शिश की दुआ सरकार कहकर भेज रहे हैं, और वो पिछली उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दिए, आने वाली उम्मत की बख्शिश की दुआ करने के बारे में कह रहे हैं। बातचीत होने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अवैस क़रनी एक सवाल पूछते हैं, अय अवैस क़रनी, जरा बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते कैसे थे, आपका हुले मुबारक कैसा था, आपका कद कितना था, आपके बाल कैसे थे, आपके दंदानी मुबारक कैसी थी, आपका चेहरा कैसे दिखता था, आपके पैर कैसे थे, सरापा आप कैसे नजर आते थे, जरा आप बताएंगे तो मेहरबानी होगी। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके जिस्म का पूरा मुआयना कर बता दिया कि सरकार का सर इस कदर था, दंदानी मुबारक कितनी थी, मिसालें दे देकर पूरे जिस्म का हुलिया बताने के बाद अवैस क़रनी कहते हैं, अली तुमने मेरे मुस्तफा को नहीं देखा। अवैस क़रनी कहते हैं, अरे अली तुमने मेरे मुस्तफा को नहीं देखा। हजरत अली परेशान, मेरी पैदाइश काबे में हुई, मैं काबे में पैदा हुआ, काबे में पैदा होने के बावजूद दुनिया में मैंने आंख नहीं खोली जब तक मेरे मुस्तफा का दीदार मैंने नहीं किया। उस वक्त तो मैंने आंख नहीं खोली, जब पैदा हुआ तो मेरे मुस्तफा का मैंने दीदार किया था, मगर मैं आपके साथ ही रहा करता था, जन्म में साथ, रुकू में साथ, फिक्र में साथ, मगरिब में, मशरिक में, हत्ता कि आपकी लड़की से मैंने निकाह भी किया। और अवैस क़रनी तुमने क्या कह रहे हो कि मैंने नहीं देखा? तो अवैस क़रनी कहते हैं कि वाकई में तुमने नहीं देखा। अवैस क़रनी और परेशान होते हैं कि बताओ कि सरकार कैसी दिखते थे। कहा कि सरकार जो जाहिर थे वो जाहिर अली तुमने देखा है, बातिन में सरकार क्या थे वो तुमने नहीं देखा। परेशान हो गए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, परेशानी के आलम में अपने शहर वापस आ गए कि अवैस क़रनी को न जाने क्या हो गया है, मैं सरकार के साथ इतना रहने के बावजूद भी आंख खोलने के बाद दीदार सरकार का किया, हर जगह मैं मुस्तफा के साथ था, परेशानी खाई जा रही थी, परेशान पे परेशान हो रहे थे, ये क्या कह दिया कि मैंने नहीं देखा। जाकर परेशानी के आलम में घर में बैठते हैं, आपकी और हमारी उम्मुल मुमिनीन हजरत तय्यबा सैयदा साजिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछती है, अरे मेरे कश्ती के खुदा जमी का फटना गवारा है, लेकिन आपकी उदासी मायूसी मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। आप इतना उदास क्यों होते हो, आप ऐसे खामोश क्यों बैठे हो जब से सफर कर कर आए हो? तो अली रज़ियल्लाहु सारा वाकया बयान करते हैं कि सरकार का जुब्बा मुबारक अवैस क़रनी को दिया गया, उम्मत की बख्शिश की दुआ। और अवैस क़रनी ने कहा है कि मैंने मेरे मुस्तफा को नहीं देखा है। अरे फातिमा क्या बताओ, मैंने सरकार को नहीं देखा। तो अम्मा मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे मेरे कश्ती के नाखुदा, वाकई में आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। परेशानी का आलम बढ़ गया, हजरत अली और परेशान हो गए। जंग और जिहाद में साथ बेटी से निकाह किया, मेरे मुस्तफा के साथ ही रहा, आंख खोली तो दीदार किया। मेरी बीवी भी कह रही, अम्मा फातिमा भी कह रही कि नहीं देखा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला पूछते हैं, अय फातिमा रज़ियल्लाहु ताला, आप बताएं वो कैसे मैंने नहीं देखा, क्या बताओ कि आपने देखा है? तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी में मेरे अब्बा को एक मरतबा देखा है। अरे जिनकी बेटी है वो कह रही है कि मेरे बाप को मैंने एक मरतबा देखा है। तो परेशानी का आलम और बढ़ गया, और परेशान हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अरे फातिमा वो कौन सा वक्त था, वो कौन सा साल था
वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा मंजर था जिस वक्त में तुमने मेरे मुस्तफा को देखा था? तो फातिमा ने कहा, रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने मेरे अब्बा को जो वजू बनाते हुए बैठ गए, अमामा शरीफ निकालकर मेरे हाथ में दिया, देने के बाद जो है वो वजू के लिए जैसे वजू कर रहे थे, मैंने सोचा कि ये मेरी अब्बा की मिल्कियत है, ये मेरे अब्बा का वालिद का अमामा है, मैं इसे सर पर रखती हूँ। मेरी छोटी सी उम्र थी, मैं जब अमामा रखती हूँ तो क्या देखती हूँ, सातों आसमान एक वक्त में नजर आ रहे हैं, सात जमीन एक वक्त में नजर आ रहे हैं, मगरिब से लेकर मशरिक तक, शुमाल से जुनूब तक, दुनिया का हर नजारा, 18,000 मखलूक, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम, पूरी कायनात को जो है वह एक वक्त में मैंने देखा है, जब मेरे अब्बा का अमामा मैंने मेरे सर पर रखा था। तो अजीजा ने मोहतरम, अम्मा फातिमा कहती हैं, मैं अमामा जब मेरे अब्बा का रखा तो उस वक्त देखा, अरे वो फातिमा, वो सैयदा साजिदा तैयबा ताहिरा फातिमा, जब जंग के एक मौका आया, मुबाइले की बारी आई, बाप के कदमों के पीछे चल रही हैं, कदम पर कदम रख रही हैं कि कोई दूसरा मर्द पैर मेरे निशान भी ना देखे। रेती में जब चलते हैं पैरों का निशान नजर आता है। अम्मा फातिमा बाप के पीछे जा रही हैं, पीछे हजरत अली को ठहराती थी कि कदम जैसे ही सरकार रखते हैं उन्हीं कदमों पर अपना कदम रखती हैं। इतनी पाबंद थी, पीछे से हजरत अली कदमों के निशानों को मिटाते हुए आ रहे हैं। इतनी पाबंद शख्सियत कहती है कि मैंने एक मरतबा मेरे बाप को देखा है। तो यही है वो मईत रसूल फकद आता अल्लाह, यही वो हदीस है, मन रानी फकद रा अल हक, जिसने मुझे देख लिया उसने हक को देख लिया। तो अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमामा शरीफ बनते थे, जब अमामा अपने सर पर रखते थे, पूरी कायनात का नजारा आप एक वक्त में देखा करते थे। यह है मेरे मुस्तफा की शान, यह मुस्तफा की अजमत है कि पूरी कायनात को एक वक्त में देख सकते हैं। दो कौड़ी के कहते हैं कि सरकार को इल्मे गैब नहीं, अरे जिन्हें जिनके बाप का पता सही ढंग से ना हो वही ये कहेगा कि मुस्तफा को इल्मे गैब ना था। अरे मेरे मुस्तफा पर उस जमाने में मुशरिकीन ने तानाकशी की, दीवाना कहा, मजलूब कहा, फला कहा, फला कहा। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह कलम में आयतें नाज़िल कर दी गई कि तुम झूठे हो, मक्कार हो, वलदुल जिना हो। इतनी गालियां अल्लाह ताला ने कुरान में दी कि मेरे मुस्तफा पर अगर जरा आंच आ जाए तो अल्लाह की जलालत को जोश आ जाता है। तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया था कि आप जो है इतनी एक वक्त में पूरी कायनात का नजारा, पूरी कायनात का दीदार कर रहे थे। 10 मिनट का वक्त दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट गुजर गए। तो अजीजा ने मोहतरम, मेरे मुस्तफा से मोहब्बत वही कर सकता है जो आशिक रसूल होता है। मुस्तफा पर हम अपनी पूरी जिंदगियों को भी कुर्बान कर दें, तब भी हम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान का बदला नहीं दे सकते। तो क्या हसीन मंजर था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए थे कि अवैस करनी के कहने पर जो है कि सरकार का असल मकाम और मर्तबा क्या है, सरकार में असर कैसे दिखते हैं, सरकार का असल में दीदार कैसे होता है। सरकार का दीदार गोया कि अल्लाह का दीदार है। अल्लाह का दीदार करना है तो सरकार का दीदार करना है, सरकार का दीदार करना है तो सरकार पर इताअत, मोहब्बत हमारे लिए जरूरी और लाजमी है। हम अपनी जिंदगियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निशावर कर दें, पूरी जिंदगी बैठकर पाबंदी करें, अमल करें, तब भी जो है हम मुस्तफा जाने रहमत पर एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते। तो अजीजा ने मोहतरम, यहां पर आज हम मीलाद मुस्तफा मना रहे हैं।
सरकार का मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं। ये मिलाद अब से नहीं बल्कि शुरू कायनात हुई उस वक्त से जो है मिलाद चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि अहद और अहमदा का जिक्र अल्लाह ताला ने उसी वक्त से तय कर दिया था, मेरे मुस्तफा को दुनिया में भेजना है। तो फरिश्तों को पाबंदी लगा दी गई कि तुम हमेशा मेरे मुस्तफा सलातो सलाम दरूद भेजा करें। इस आयत को कौन झुटला सकता है? या आपको इस आयत को कोई नहीं झुटला सकता, और यह आयत की पाबंदी कोई भी तोड़ नहीं सकता। या जैसे ही हम सुनते हैं तो अमल हमारे लिए जरूरी होता है। तो अजीजान मोहतरम, हमारे लिए जिंदगी में बेहद जरूरी है, लाजमी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना दरूद पड़े। हाल ही का एक वाकया मेरे अपने साथ खुद गुजरा। आप यकीन जाने या ना जाने, मैं मस्जिद में बैठा हूं, अगर झूठ बोलो तो कलमा मुझे कभी रोज ना हो। हमारे ड्राइवर साहब शिक्षा भाई, उनके मकान पर गांव जाते जाते उनके मकान पर गया तो आपके घर का एक मामूल है कि रोजाना वो 2000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं। जैसे ही बैठा था तो तस्बीह सामने रखी हुई थी, जोहर के वक्त पहुंचा तो मैंने गांव जाना भूल गया और 2000 दरूद शरीफ मैंने मुकम्मल किया। और मैंने अपने दिल में यकीन जाना कि आज मैं पाबंदी के साथ ये दरूद पढ़ा हूं, यकीनन मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या नहीं तो कुछ बुरा होने से मैं बच जाऊंगा। जैसे ही मैं गांव से आ रहा था, एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से मैं बच गया। बहुत बारिश हो रही थी, लाइटिंग में कुछ नजर नहीं आ रहा था, सामने एक गाड़ी जा रही थी, मैं किसी भी सूरत में उसे बचा ही नहीं सकता था। ऐसे इंसान थे, मगर अल्लाह की शान यह है कि सरकार की मोहब्बत मेरे दिल में यह थी कि मैंने दरूद पढ़ा था, मगर मैं खेत में गाड़ी उतार दिया, मगर मैं उस शख्स को जो मैंने बचा दिया। ये कभी दूर नहीं बल्कि 4-8 दिन पहले का मामला है। ये आजमा कर देख लो। आपको किसी भी चीज की हाजत हो, आप कसरत के साथ एक मर्तबा मुसल्ले पर बैठकर 2 रकात नमाज अदा कर नफिल नमाज अदा कर दरूद शरीफ कसरत से पढ़कर देखो। हम उम्मतियों के लिए सारी जिंदगी में हर हाजत की दवा जो है सिर्फ दरूद शरीफ है। हमारे लिए कोई दूसरी चीज जरूरत नहीं। मैं इतने यकीन से कह रहा हूं, कौन इतने यकीन से कह सकता है कि मस्जिद में बैठकर कौन झूठ बोल सकता है? तो अजीजान मोहतरम, ये फजीलत है दरूद शरीफ की। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे दरूद शरीफ पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हजरात को भी दरूद शरीफ पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जल्ला सुन जगह